Hello students, today we are going to do next exercise 6th B, and in this exercise specially we will discuss the expression of the form a into x plus y plus b into x plus y. That is, the given expression will be in this form where this x plus y, that is binomial term, is common in both the terms. So to find the factorization of this type expression, first we will take this binomial common term as a common. So if we take x plus y as common, then here is a and here b. So this is the factorization of this type expression when binomial term is common in both the term. So let us see question number first of exercise 6th B, part A. Find the factor of following polynomials. So first question is first question is a into f plus g plus of b into f plus g. So here f plus g, this binomial term is common in both the term. This is the first term f plus g, and in the second term this is f plus g. So f plus g is a binomial term which is common in both the term. So if we take f plus g as common, then first here will be a and here will be b. So this is your factor. Now question number second. Question number second is the given expression is x into b minus c minus of y into b minus c. So here b minus c is common in both the terms. So if we take b minus c as common, then here x and here y. So this is your factor. Then question number 3. Question number 3 is p square into x plus y plus q square into x plus y. So x plus y is common. So if we take x plus y as common, here will be p square plus q square. So this is your answer. Then question number 4. Question number 4 is again 3 into 6 minus y into 6 minus y. So here common is 6 minus y. So if we take 6 minus y as common, then here will 3 and here will be y. So this is the factor. Then question number 5. Question number 5. Find the factor of a into 10 minus x minus of 10 minus x. So again see, one term is a into 10 minus x, another term is 1 into 10 minus x. So 10 minus x binomial term is common. Binomial means this term having two term. ठीक है. सो 10 माइनस एक्स को अगर अपन कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा 1, और यही आपका आंसर है. देन क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज a माइनस b होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4 इंटू a माइनस b. सी फर्स्ट टर्म में a माइनस बी होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म में 4 इंटू a माइनस बी. देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है. सो अगर a माइनस बी को मैं कॉमन लेता हूं तो होल स्क्वायर मींस क्या है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी. सो a माइनस बी कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा a माइनस बी, और यहाँ a माइनस बी पूरा बाहर आ गया तो कितना बचा, ओनली 4. सो a माइनस बी इंटू a माइनस बी प्लस 4. दिस इज योर आंसर. सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन. दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, 6th part. 6th is a minus b whole square. Sorry, this is question number 7.
क्वेश्चन नंबर 7 इज 4 इंटू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू पी प्लस क्यू होल पावर 1. सो पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस ऑफ 8 इंटू पी प्लस क्यू. देखिए यहां पर क्या है, p प्लस क्यू होल स्क्वायर या p प्लस क्यू की होल पावर 1 है. सो कॉमन क्या आएगा, p प्लस क्यू. तो p प्लस क्यू अगर अपन कॉमन लेंगे यहां से तो यहां बचेगा 4 इंटू पी प्लस क्यू फर्स्ट में, और माइनस सेकेंड में क्या बचेगा, माइनस ऑफ 8. ओके, सो दिस इज योर आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 8. 8 is 7x plus 14y plus x plus 2y का होल स्क्वायर. ओके, अब देखिए यहां से इन दोनों टर्म में से अगर मैं 7 कॉमन लेता हूं तो यहां क्या बचेगा, x plus 2y प्लस ऑफ यहां क्या आ रहा, x plus 2y का होल स्क्वायर. ये x plus 2y की होल पावर 1 लिख सकते हैं. अब फिर क्या कॉमन आएगा, x plus 2y और x plus 2y. तो x plus 2y अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां तो कितना बच रहा, 7, और यहां पे x plus 2y का होल स्क्वायर मतलब x plus 2y into x plus 2y. एक बाहर आ गया तो क्या बचेगा, x plus 2y. दिस इज योर आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 9. 9 is 5y minus 3z whole square minus of 10y plus of 6z. ओके, आप देखो ये क्या है, 5y minus 3z का होल स्क्वायर. यहां से अगर मैं इन दोनों में से अगर मैं -2 कॉमन लेता हूं तो 10 में से 2 कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा, 5y, और ये कितना बचेगा, -3z, क्योंकि -3z इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6z. अब देखो 5y minus 3z, 5y minus 3z फिर से कॉमन आ जाएगा. तो 5y minus 3z कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा 5y minus 3z और यहां बचेगा -2, क्योंकि ये तो पूरा बाहर आ गया तो केवल -2 बचा. यही आपका आंसर है. देन क्वेश्चन नंबर 10. 10 is 3x into x minus y plus 2y into x minus y plus 7 into y minus x. अब देखो सबसे पहले अपने को देखना कि कॉमन क्या आ रहा है. यहां कॉमन है x माइनस वाई है, यहां पे भी x माइनस वाई है, यहां y माइनस एक्स है. तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये तो हो जाएगा -7, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस x माइनस वाई, क्योंकि दोनों का साइन चेंज हो जाएगा. तो इसको मैं फाइनली क्या लिख दूंगा, फिर मैं लिख दूंगा x माइनस वाई. ओके, अब देखिए थ्रू आउट x माइनस वाई अपन कॉमन ले लें. x माइनस वाई तो फर्स्ट स्टेप में बचेगा 3x, सेकेंड स्टेप में 2y, थर्ड स्टेप में -7, और यही आपका आंसर है. देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 and 12. So please pause the video, note down. Question number 11. 10 plus question number 11. 10 plus 2y minus of 5z minus zy. Okay, this is the given expression. अब देखिए यहां क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं और इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं. ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है कि अपने को ये 2y है और ये zy है. क्या है, zy है. क्या है, z और y है. तो अपन क्या करते हैं, y वाली टर्म को साथ में ले लेते हैं और z की टर्म को साथ में ले लेते हैं. तो 10 और -10 माइनस 5z को तो अपन ने साथ में लिया, प्लस 2y और माइनस zy को अपन ने साथ में ले लिया. आप देखिए
यहां से क्या करते हैं, यहां से कॉमन लेते हैं 5। क्या लेते हैं, यहां से इन दोनों टर्म में से 5 कॉमन लेते हैं, तो 2 माइनस जेड हो जाएगा, क्योंकि 5 2 जा 10 और माइनस 5 जेड। यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं, क्या लेता हूं, सॉरी y कॉमन लेता हूं, तो यहां बचेगा 2 माइनस जेड। समझ में आया? आप देखो ये 2 माइनस जेड और ये भी 2 माइनस जेड, ये फिर से कॉमन आ जाएगा, तो 2 माइनस जेड को कॉमन लिया तो यहाँ बचा 5 प्लस वाई, और यही आपका आंसर है। समझ में आ गया? दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। देन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2pq माइनस 6p प्लस q माइनस 3, माइनस प्लस 2pq माइनस 6p प्लस q माइनस 3। तो इसमें क्या करेंगे, 2pq और q को अपन साथ में लेते हैं, 2pq प्लस ऑफ q माइनस 6p और माइनस 3 को साथ में। आप देखें इनमें से साथ क्या कॉमन आ सकता है, देखो दोनों में से q कॉमन आएगा तो 2p प्लस 1। यहां से क्या कर लेता हूं, माइनस 3 कॉमन लेता हूं तो 2p प्लस 1, क्योंकि देखो वापस माइनस 3p 2p माइनस 6p माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस 3। अब देखो ये 2p प्लस 1 फिर से कॉमन आ रहा है, तो 2p प्लस 1 को अपन फिर कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचा, q और माइनस 3, यही आपका आंसर है। सो दिस वाज द एक्सरसाइज 6th B, and in this exercise specially we discussed that in the given expression one binomial term was common directly or by some initial efforts, and then taking that binomial common term is common, the remaining will be another factor. So hope you like this video. Please like it, share it and stay with me. Thank you.